गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट यू टेल मी माय वॉइस इज ऑडिबल। आवाज आ रही है आपको? प्लीज रेज योर हैंड। माय साउंड इज रीचेस टू यू? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, so students, once again I welcome to this class and good morning. Yesterday we started our very first chapter of geography, that is resource, and we discussed about the meaning of resources, why and how the substances, the natural substances are called resource. I told you that resource means the substances which are in naturally present. When we use them to fulfill our needs, those are called resource. All the available natural substances, we cannot say that are all resources, but when we use them means how these resources are formed because of their utility, and because of their utility we also pay for them. All the resources which we use for our needs, to fulfill our needs, all these resources have value. So all these topics we discussed yesterday, and one more about the classification of resources. Classification of resources means on the basis of level and development and use, origin, stock, ubiquitous and localized. Then we also discuss the types of resources. That is the natural, human made and human are called the resources. This we thoroughly discussed everything. Today we move to our last topic, that is the resource conservation. First of all, you should understand the meaning of resource conservation. Conservation मतलब क्या होता है? चीजों को बचा के रखना है ना. So we can say that resource conservation means we should use the resources carefully and to give them time to renewed. It is called resource conservation. अगर हम इसको थोड़ा सा और इस definition को समझें तो रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि रिसोर्सेज को जुडिशली यूज करना. रिसोर्सेज को कैसे यूज करना? जुडिशली करना, केयरफुली करना और वाइजली करना, जिससे कि रिसोर्सेज को क्या किया जा सके, लॉन्ग टाइम के लिए कंजर्व किया जा सके. दिस इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. So today's topic is resource conservation, and another topic is related to this. This is sustainable development. बच्चों ये जो concept है, it is not a new concept. It was before so many years it was present there. But I told you the two factors that play a very important role. What is this two factors? Time and technology. When the time and technology it enhanced, the concept of sustainable development are now more used. So we will discuss all these topics today. So first of all, we understand the meaning of resource conservation. Ronak? Yes, Ronak, what is your problem? गुड मॉर्निंग मैम. Good morning. मैम ये जो आपने व्हाइट बोर्ड पे पीछे लिखा है मैम, वो कॉपी में लिखना है क्या? नहीं, आपको कुछ भी कॉपी में नहीं लिखना है क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में है. ठीक है. टुडे वी विल डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स, है ना. जहां पर नोट डाउन करना होगा आई विल टेल यू. ओके, यू जस्ट लिसन टू मी. चलिए अब हम बात करते हैं कि रिसोर्स कंजर्वेशन जो मैंने आपको अभी समझाया, थोड़ा सा और इसको एलिब्रेट करते हैं. रिसोर्स कंजर्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड understand the meaning of resource conservation. I told you that resource conservation means we should use available resources wisely, judicially, to give the resources time to renew themselves, है ना. उन सब चीजों को रिन्यू किया जा सके, उनको टाइम देना है. ऐसे नहीं कि इनडिस्क्रिमिनेटली आप उसको यूज करते जाए, है ना. हर चीज की एक लिमिट होती है, आखिर वो खत्म होगा, एग्जॉस्ट होगा. तो हम इसी पे आज बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन एक बनता है कि व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, देन नेक्स्ट इज व्हाई वी शुड कंजर्व द रिसोर्सेज. चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं कि हमें रिसोर्स को कंजर्व क्यों करना चाहिए. देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट में आप सबको मैंने जब स्टार्टिंग क्लास ली थी तब भी मैंने आपको ये कहा था, सम पीपल दे थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. एग्जैक्टली, बट what is the limitations here? Because of their quantity. मान लीजिए आज जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जितना ज्यादा ह्यूमन बींग्स ने एनवायरमेंट के साथ
इंटरवेन किया एनवायरमेंट में, तो वो तब तक हमारे लिए डिजास्टर बन के आया है। अगर हम रिसोर्सेज का, अगर ये नेचुरली जो सब्सटेंसेज है दैट वी कॉल देम रिसोर्स फॉर आवरसेल्व्स, अगर हम उनका जुडिशली यूज करते हैं, वाइजली यूज करते हैं, तभी वो रिसोर्सेज लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। अब बात यह आती है कि रिसोर्स का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। तो हम मानते हैं कि लैंड है, वाटर है, सॉइल है, वेजिटेशन है, दीज आर फ्री गिफ्ट and these are unlimited on earth and they have the feature to renew themselves with the course of time। हमें मालूम है हो जाता है, रिन्यू भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, but there is a limitation if we use these resources unwisely and limitlessly, what will be the result। अब आपको ग्राउंड वाटर का बताते हैं, जैसे कि आपको पता है पानी है ना, हम मानते हैं कि पानी खूब है और उस पर 2/3 वाटर है, लेकिन वाटर जो है वो सारा यूजेबल नहीं है, हमें ये भी मालूम है प्योर वाटर है, दिस इज वेरी लेस रादर देन सलाइन वाटर। अब आप मुझे मालूम बताइए, जो प्योर वाटर ड्रिंकिंग वी कैन से पोटेबल वाटर, वो इतना कम है, इतना कम है, और उसका कंजर्वेशन अभी आप समर में देख रहे हैं कि सबके घरों में पानी जो है थोड़ा सा कम होने लगा है। तो उस कंडीशन में हमें थोड़ा सा हमें नॉलेज में आता है, घर पे आपको पेरेंट्स भी आपको टोकते होंगे कि बेटा पानी कम यूज करो। तो कहने का मतलब है कि पानी जो वाटर जो हम मान रहे हैं कि अनलिमिटेड है और अर्थ पे, तो इसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करें। ग्राउंड वाटर की बात करें, ग्राउंड वाटर खूब पानी है, लेकिन अगर टाइमली बारिश नहीं होती और हम उस ग्राउंड वाटर के पानी को बार बार यूज करते रहते हैं फॉर फार्मिंग, फॉर इरिगेशन, फॉर अनदर पर्पजेज ऑल्सो, तो पानी क्या होगा, उसका लेवल देखो, वाटर टेबल होती है, उसको वाटर क्या होगा, नीचे चला जाएगा। फिर वापस वो रिन्यूड कब होगा, जब रेन वाटर होगा या हम उसका कम यूज करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज अ क्वेश्चन आंसर इज हियर दैट व्हाई वी शुड कंजर्व रिसोर्सेज। We should conserve resources because these natural resources, which we think that these are unlimited and these are free gifts of nature, that and we can use them indiscriminately. But once we have to keep in mind these resources are also very limited and with the course of time this can be exhausted, ये भी खत्म हो सकता है। तो क्वेश्चन ये आया, अब हम इन रिसोर्सेज का यूज कहाँ कर रहे हैं। आपको पता है आज कौन सा कॉन्सेप्ट है, ग्लोबलाइजेशन का, है ना। ग्लोबलाइजेशन मीन्स वी आर इंटरकनेक्टेड विद डिफरेंट कंट्रीज थ्रू मैनी वेज, है ना, दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम है वो किसी एक नेशन की नहीं है, बल्कि हम कहें कि डेवलप्ड कंट्रीज की प्रॉब्लम ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज का सबसे ज्यादा यूज किया जाए। डेवलप्ड कंट्री मीन्स इन ऑल द स्फीयर्स दे आर डेवलप्ड, इकोनॉमिकली दे आर डेवलप्ड, ठीक है। तो जितना ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज होगी वहां की पीपल क्या होगी, उतनी ज्यादा प्रॉस्परस होगी और उन रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज करेगी। कहने का मतलब बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट वी नाउ कम टू नो that environment problems, it is not confined to the limits of one country, but it is also that it connected to another countries also. That's why 1992 एक रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में, साउथ अमेरिका में फर्स्ट समिट हुई थी, अर्थ समिट। उसके अंदर जो है सारे एनवायरमेंट से रिलेटेड जो है डिस्कशन हुए थे और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज थी और डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्होंने उस पर साइन किए कि हम कम से कम एनवायरमेंटल जो है डिस्ट्रक्शन होगा उसको बचाने की कोशिश करेंगे। और उसी टाइम ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी जो है और ज्यादा उसको प्रैक्टिकली यूज करने के लिए उन्होंने उस एग्रीमेंट पे साइन किए। अब जो मैं नेक्स्ट जो आपको टॉपिक पे ले जा रही हूँ वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बच्चों अगर हम इसका हिंदी में मतलब समझे तो इट्स वेरी हार्ड ना, इसको याद करना मुश्किल है। तो सस्टेन अगर हम कहें, सस्टेन यानी जो लंबे समय तक आगे तक चल सके। कई बार अपनी बहुत ही कॉमन वर्बल लैंग्वेज में यूज करते हैं, यू कांट सस्टेन दिस, आप इसको ज्यादातर यू कांट टेक इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम इसको ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं खींच सकते, दिस इज कॉल्ड सस्टेन। और आपको लग रहा होगा कि मैम हिंदी में भी बता देती हूँ, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है। तो कहने का मतलब है सतत का मतलब है देखो जो लगातार चलता है, पोषणीय जो हेल्दी होता है और विकास डेवलपमेंट होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब क्या है, अगर हम एनवायरमेंट से रिलेटेड देखें तो बिकॉज इट इज टोटली कनेक्टेड टू द
related to the environment. Sustainable development का मतलब होता है we should use available resources wisely, judicially to meet the demands of the present and to conserve the resources for upcoming generation. क्या मतलब समझे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब केवल ये नहीं कि आप डेफिनेशन को ही समझ गए, हमें इसको बहुत सारी चीजों के साथ समझना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मैंने डेफिनेशन दिया, अगर उसका मतलब निकाला है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये निकलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी वो विकास करना, हमें अपने रिसोर्सेज का बहुत ही केयरफुली, बहुत वाइजली यूज करना, ताकि हम प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सके और फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको कंजर्व कर सके। बच्चों मैं आपको ये बार बार इस पे फोर्स क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक आपके टेंथ में बहुत ज्यादा ब्रॉड उसमें दे रखा है, इलिब्रेशन के साथ दे रखा है। अब हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल होगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि हमने कहा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, है ना, इन ऐसी कई सारी ऐसी और है रिसोर्सेज जो विद द कोर्स ऑफ टाइम इट कैन बी रिन्यूड, बट when it can be renewed, when we will give them time, proper time to renew, कि वापस वो अपने आप रिन्यू टाइम देंगे। ऐसे नहीं होगा कि हम बिकॉज ऑफ, आप देखिए कि आज जो हमारी डेवलपमेंट की स्पीड है, हर देश जो है दूसरी कंट्री से आगे आ रहा है और उसकी कोशिश यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है रिसोर्सेज का यूज करके और ज्यादा डेवलप्ड नेशन बने। लेकिन मुझे ये बात बताइए, अगर हम एनवायरमेंट जो कि अपने, देखो हर चीज की एक टाइम पीरियड होता है ना, जैसे ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ का एक टाइम पीरियड है, ऐसे एनवायरमेंट हम सोच रहे हैं कि आज हमने एक प्लांट लगाया और कल वो बहुत बड़ा सारा पौधा हो जाए, पॉसिबल है क्या ओवरनाइट वो प्लांट जो है एक ट्री बन जाएगा? हर चीज अपना टाइम लेती है, और अगर हम टाइम का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये रिसोर्सेज क्या होंगे, डिप्लीट होते जाएंगे। हमने एक रिसोर्स को यूज किया तो हम सोच रहे कि जब तक दूसरा नहीं, तब तक आप एक रिसोर्स का यूज करेंगे, अगर आप टाइम नहीं देंगे तो वो रिसोर्स डेवलप कैसे होगा, रिन्यू कैसे होगा? तो सस्टेनेबल डेवलप कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? द कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द रिन्यूड, वी शुड यूज renewed resources like solar, wind and another energy, hydroelectricity and another energy sources, जिनका हम बार बार यूज कर सकें, वेस्ट नहीं हो, है ना, सीधे वेस्ट नहीं हो, उसे कहते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड मोर थिंग है रिसोर्स कंजर्वेशन का और तरीका क्या है। आपने शायद पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कि एनवायरमेंट डे मनाते हैं ना, और इसके अलावा वन महोत्सव है, स्कूलों में प्रोग्राम्स करते हैं। व्हाई दीज प्रोग्राम्स आर हेल्ड टाइम टू टाइम? टू ब्रिंग द अवेयरनेस इन पीपल, टू ब्रिंग द अवेयरनेस इन स्टूडेंट्स, है ना। हम लोग एनवायरमेंट डे प्लांट्स लगाते हैं, स्कूल्स में बच्चे प्लांट्स लगाते हैं, ये सारी अवेयरनेस लाने के लिए एनवायरमेंट, क्योंकि देखो we are human beings that we have this capability to conserve these resources। मैंने आपको क्या कहा, ये रिसोर्सेज अपने आप को यूज नहीं कर सकते, यूज तो हम ही कर रहे हैं ना। That's why it's our duty that we should conserve these resources judicially। तो ड्यूटी किसकी बन गई है? देखो एक फैमिली है, फैमिली में चिल्ड्रन है, पेरेंट्स उनकी केयर करते हैं ना, क्योंकि वो चिल्ड्रन क्या है, वो उनके फ्यूचर है। और अगर हम ये मानते हैं कि हमारे नेशन का डेवलपमेंट एनवायरमेंट रिसोर्सेज से होता है, दैट्स आवर ड्यूटी, इट्स आवर ड्यूटी, बिकॉज वी आर यूजिंग दैट, सो वी शुड कंजर्व देम प्रॉपर्ली। तो ये ड्यूटी किसकी बनती है? हमारी बनती है। नेक्स्ट मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि और क्या तरीका है रिसोर्स कंजर्वेशन का, तो अवेयरनेस की बात करी हमने, प्लस person should, all human beings should, they should understand that they should understand that what type of resources they should use, like renewed resources, minimum we can say minimum reduction, reuse, recycle, 3 R's is there, है ना। 3 जो R है वो यही है, reduce, recycle and reduce, recycle and reuse। तो कहने का मतलब अगर हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को वास्तव में यूज करें अपनी लाइफ में, तो नो डाउट इट विल बी मीन अ लॉट फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग, कि हम अपने प्लैनेट को, अर्थ को सेव कर सकते हैं इससे। प्लस बहुत सारी ऐसी घर में ऐसी चीजें होती है, हम डेली अपनी लाइफ में कुछ हैबिट्स को डेवलप करके रिसोर्स कंजर्व कर सकते हैं। जैसे
टैप वाटर आ रहा है, बकेट भर गई है, तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है? ये नहीं कि पेरेंट्स की ड्यूटी है, उन्होंने देखा तो वो ही उस टैप को बंद करेंगे, नहीं। लाइट है अगर यूज नहीं आ रही, तो आपको आपको लग रहा है कि हम अपने घर की बिजली बचा रहे हैं, पानी। बिल्कुल ऐसा ही अगर हम ऑलराउंड अगर सारी फैमिलीज ऐसे करती है तो धीरे धीरे क्या होगा, कंजर्वेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और कंजर्वेशन स्टार्ट होगा तो हम उसको सस्टेन कर पाएंगे, है ना। वी कैन यूज देम फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑल्सो। So this is the concept that related to the sustainable development. So this is it is not new concept but a time and technology. It enhance the uses of sustainable development. Now we are more aware about. अब आप मुझे एक बात बताइए कि अभी जो लोगों का ट्रांसपोर्टेशन बंद था, हम लोगों का आना जाना बंद था, तो कंजर्वेशन हुआ, वाटर का कंजर्वेशन हुआ, फ्यूल का कंजर्वेशन हुआ, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का कंजर्वेशन हुआ, जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह सब बंद थी। तो कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बंद करके रख दें इनको, बट हमें इनको यूज कैसे करना है, मिनिमम रिडक्शन के, मिनिमम जैसे वेस्ट उससे बचाना प्लस जुडिशली यूज करना। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो चीज आ रही है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल, दैट इज आई wrote on the board and I hope that you all students have their textbook also. It is written in, it is given in your textbook, so no need to write down. कोई जरूरत नहीं है, अगर जिस बच्चे के पास नहीं है टेक्स्ट बुक देन दे कैन, तो आप नोट डाउन वही बच्चे करें जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है। बट मैंने इस चीज को इसलिए लिखा है ताकि हम उन प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर सके। इट इज गिवन इन बॉक्स इन योर टेक्स्ट बुक की बॉक्स में दे रखी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, सिद्धांत क्या है। देखो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट देने से कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है, जब तक हम उसके प्रिंसिपल्स नहीं समझेंगे उसको, हम उसको प्रॉपर वे में उसका यूज नहीं कर सकेंगे। So principles क्या है बच्चों? These are the principles. 6 principles are there. What are these? Respect and care all forms of life. So all forms of life से मतलब क्या हुआ? Like vegetation, plants, animals and human life. तो इन सब की क्या करनी है? केयर करनी है। अब केयर कैसी होगी? जब हम इनको प्रॉपर यूज करेंगे, है ना, प्रॉपर यूज करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। पेड़ों को काटना है, देखिए ऐसा है कि मैं कह दूं कि पेड़ों को काटना बंद हो जाएगा, नहीं, लेकिन देयर इज अ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री ऑल्सो। नए नए जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उसको अडॉप्ट करके ही इन रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए। सेकंड बात करते हैं इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव होगी, ये क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए, अगर हम चीजों को जुडिशियली यूज करेंगे, वाइजली यूज करेंगे, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ किसकी? प्लांट्स की भी इंप्रूव होगी, एनिमल्स की भी होगी, वेजिटेशन की भी, फ्लोरा फौना सबकी होगी, हमारे वाटर की भी क्वालिटी, है ना। कहने वाले, अब जैसे आपको पता है कि बीच में क्या अपने इश्यूज आ रहे थे कि गंगा और यमुना जो है रिवर्स है, उनका वाटर पोल्यूट हो गया। तो पोल्यूशन रोकने के लिए हमें क्या करना है? उस वाटर को पोल्यूट जो है वाटर का प्रॉपर वे में यूज करना है, जिससे हम वी कैन मेंटेन द क्वालिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज। Not only of these, human life is also very important. We should maintain the quality of human life also. Now you can ask how we can maintain. So in this way we can, that if we invest in good health, good care, good education, so in this way we can also maintain good life of human beings. So third is conserve the earth's vitality and diversity. Diversity in all spheres in India because of the topography division. Mountains, plains, plateaus. किसका है? रौनक, रौनक, what's your problem? मैम इसका ड्यूटीज वाला, मैम 4th वाला पॉइंट एक मिनट फिर से समझाना मैम। अल्लाह कमाल हो गया, मैंने तो ड्यूटी समझाई नहीं, मैं तो अभी प्रिंसिपल्स पे, आप इतनी आगे कैसे चले गए? मैं तो बेटे अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स में, ड्यूटीज योर लास्ट टॉपिक, वी विल डिस्कस लेटर। ओके ओके मैम। ओके, तो हम थर्ड टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं, कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। You know that I was talking about that India's diversity, topography diversity, mountains, plains, plateaus, islands,
According to this diversity, the vegetation, animal kingdom, flora and fauna is also different from one region to another. So in this way, what is our duty? What is the principle of sustainable development? That we conserve the earth vitality. Vitality means उसकी जो ऊर्जा एनर्जी है उसको और डाइवर्सिटी को बचाए रखना है. मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ एनवायरमेंट. अब डिप्लीशन यानी जैसे मैंने आपको क्या कहा, डिप्लीशन से मतलब है कि आप चीजों को डिप्लीट होने यानी उनको खत्म होने से कम मिनिमाइज करें. जैसे मैंने कहा कि पेड़ों को काटना रुकेगा नहीं, लेकिन हम अगर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट अगर अडॉप्ट करते हैं तो नो डाउट डिप्लीशन कम होगा. ठीक है ना. हर चीज का आपको पता है, देखो बार बार टाइम एंड टेक्नोलॉजी आती है. टाइम एंड टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है. आज हमारी लाइफ बिल्कुल मॉडर्न लाइफ है ना. और हमारी जो अगर हम अपनी कंट्री की टेक्नोलॉजी की बात करें तो इट इज नॉट लैग बिहाइंड इन अनदर डेवलप्ड नेशन. बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में है जो किसी और कंट्री में भी नहीं, आपको पता होना चाहिए. तो कहने का मतलब ये है कि पहले जब लोग अनअवेयर थे, इलिटरेट थे, वो इनडिस्क्रिमिनेटली उन चीजों को यूज करते थे. आपने प्रिमिटिव पीपल के बारे में तो पढ़ा होगा, जूम, दैट इज जूम कल्टीवेशन, जिसमें वो वन पैच ऑफ लैंड को क्या करते थे, जला के आगे आगे चले जाते थे. अब वो टाइम थोड़ी ना कि हम प्रिमिटिव लोगों की तरह लाइफ को अपनी सस्टेन करें. और अगर ऐसा करते हैं तभी तो डिजास्टर्स आते हैं, क्लैमिटीज आती हैं. So that's why minimum the depletion, change personal attitude. Personal attitude का मतलब मैं ये बहुत उससे कह सकती हूँ कि हम वी आर ह्यूमन बीइंग्स आर सेल्फिश पीपल. सबसे पहले प्रायोरिटी हम अपनी क्या रखते हैं, अपनी नीड्स को पूरा करना. ठीक है. हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ भी कोई भी मीन्स जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं. हम एनवायरमेंट का फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि प्लांट्स भी लिविंग है, एनिमल्स भी लिविंग है, हम उनको डिप्लीट ना होने दें. तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसका प्रिंसिपल यही है कि हम जो है अपने एटीट्यूड को चेंज करें, पर्सनल एटीट्यूड को चेंज करें. हम वी शुड बी वेरी केयरफुल टुवर्ड्स द नेचर, टुवर्ड्स द रिसोर्सेज. क्योंकि मैंने अभी क्या कहा, हमें इनको वैसे ही कंजर्व करना है, वैसे ही टेक केयर करनी है जैसे एक पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड चेंज पर्सनल एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिसोर्सेज ऑफ नेचर. Now the next is enable communities to take care of their own environment. I hope that you already read in your class about the primitive people, tribal people. These people, they were not aware of that time. They were not aware of the environment. That's why they used very simple tools, and we can say that they were also using indiscriminately environment. That's why these communities now, the government's attention is towards these tribal people that they should use communities to take care of their own environment. यानी जिस environment में वो रह रहे हैं उन environment का वो take care करें, अपने surroundings का take care करें. ऐसा नहीं है, देखो आज मॉडर्न, आपको पता है ऐसा थोड़ी ना है कि अब मॉडर्न टाइम में ट्राइबल पीपल नहीं है. आप नॉर्थ ईस्ट में जाए, आसाम में जाए, अरुणाचल प्रदेश में जाए, उड़ीसा में जाए, यहाँ पर अभी भी राजस्थान में राइताज है, अभी भी जो है ट्राइबल पीपल है. लेकिन इन लोगों को भी अवेयर करना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि ये पुराने जैसे प्रैक्टिसेस है ना, वो प्रैक्टिसेस अभी भी कर रहे हैं. तो उन्हें रोकना जरूरी है, क्योंकि एनवायरमेंट के साथ इस तरह से करना जो है वो डिप्लीशन होगा रिसोर्सेस का, और फिर जो है उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम सबको फेस करनी होगी. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी वर्क करेगा जब हम इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेंगे, उसको फॉलो करेंगे. तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. और देखो बुक्स में वही लिखा होता है, लिखने का मतलब ये नहीं है कि बुक्स का बुक्स में रह गया. अब बात ये है कि हम इसको प्रैक्टिकली, आप लोग यूर स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, आप इतने समझदार हैं कि रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जा सकता है अपने घर के अंदर. छोटी छोटी चीजें करके देखें आप आज से ही, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हम जो है हमने हमारी बुक में जो लिखा है उसको फॉलो किया. और देखो हर चीज की एक ड्यूटी बनती है. दैट वी विल डिस्कस अबाउट the duties and rights in your chapter 1st of political science.
You all enjoyed rights, but there are some duties. So we also enjoy the right to use these natural resources. But on the other hand, it is our duty to conserve these resources. Judicially, wisely, we should use them. तो ये हमारी ड्यूटी है. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब हम अपने प्लैनेट को, हम अपने अर्थ को कैसे एक ब्यूटीफुल प्लैनेट रख सकते हैं, एक सिक्योर प्लैनेट रख सकते हैं, अपने अर्थ के रिसोर्सेस को कैसे कंजर्व रख सकते हैं और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कम से कम आए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं. तो मैंने अभी आपको बताया है, बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट, अपने लेवल पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं. बीइंग अ टीचर आई कैन डू सो मेनी थिंग्स फॉर द टू कंजर्व द नेचर ऑल्सो. मैं भी कर सकती हूँ. एंड इवन इन ऑल सोसाइटी, इवन इन सोसाइटी द फैमिली, डिफरेंट फैमिली, दे कैन ऑल्सो लॉट टू फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब हम बात करते हैं वो ड्यूटीज जो एक पर्सन को, एक सिटीजन को अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए करनी चाहिए. So these are the duties which I mentioned here. These are the duties, like the duties. All renewable resources are sustainable. First of all, we should keep in mind that these resources, renewable resources are sustainable. सीधी सी बात है. पेट्रोल है, कोल है, फॉसिल फ्यूल्स है, नेचुरल गैस है, क्या ये सस्टेन हो सकती है? नहीं हो सकती भाई, बिकॉज इन अ वंस यूज दिस कैन बी एग्जॉस्टेड. एक बार यूज करने के बाद एग्जॉस्ट हो सकती है ना. फिर इसको रिन्यूड. अब देखो आपको एक बात बताओ, सॉइल जो है रिन्यू में भी आता है ना. रिन्यू में कैसे आता है, लेकिन सॉइल की एक लेयर को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स. तो आप समझ सकते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो स्पेशली बायोटिक रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल है, उनको रिन्यू होने में भी बार बार एक बात कर रही हूँ, टाइम लगता है. और उस टाइम का हमें जो है स्पेशली ध्यान रखना है. So all renewable resources are sustainable. Just keep in mind that, and it's our duty that we should use renewable resources rather than non-renewable resources. कोशिश ये करनी चाहिए. और हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, टाइम टू टाइम जो है नए नए ऑप्शंस लाते हैं कि और इसकी जगह इसके इन द प्लेस ऑफ दीज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज व्हाट कैन बी यूज. तो क्या चीजें यूज कर सकते हैं, वो सब बार बार इस चीज का डिस्कशन होता है. सेकेंड जो हमारी ड्यूटी है, दिस इज द डाइवर्सिटी कंजर्वेशन. सेकेंड थिंग इज द लाइक द व्हाट वी डिस्कस्ड इन प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सेम ड्यूटीज आर गिवन टू अ सिटीजन, सेम ड्यूटीज आर गिवन टू इंडिविजुअल, दैट वी शुड मेंटेन द डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी इन ऑल स्फीयर्स, यू नो, हर जगह फ्लोरा फौना डिफरेंट है ना. अब आपको पता है कि जैसे हम कहते हैं कि जो सी के जो एरिया है, जैसे गोवा है, बॉम्बे, जो एरियाज हैं ये वाले, वहाँ स्पेशली लोगों का खाना सी फूड होता है. अब आप मुझे ये बताइए कि अगर टोटली सी फूड ही होता है तो मराइन लाइफ का क्या होगा? वो क्या कंजर्व हो पाएगी, प्रोटेक्ट हो पाएगी? नहीं. तो यही तो चीज अवेयर करनी है कि हर चीज की एक लिमिटेशन है. आप इसके उसमें और ऑप्शन ढूंढे, आप कुछ वेजिटेशन लें, है ना. थोड़ा सा ये नहीं है कि आप बिल्कुल उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए. दिस इज ओनली एग्जांपल दैट आई वांट टू एक्सप्लेन द सेकंड पॉइंट हियर. सो द डाइवर्सिटी कंजर्वेशन मींस विद डाइवर्सिटी वी शुड कंजर्व द डाइवर्सिटी, लाइक फ्लोरा एंड फौना. हर चीज में डाइवर्सिटी आप देख रहे हैं. राजस्थान में जो वेजिटेशन है एनिमल्स में है, वो जो है नॉर्थ ईस्ट जो कंट्री आसाम वगैरह उनमें नहीं है. ठीक है. सेकेंड थिंग हम अगर ये बात कर सकते हैं कि जो हमारे कंट्री में जो एक अवेलेबल किसी स्टेट में वो दूसरे स्टेट में नहीं है. That's why we should be very careful about the diversity of our nation and we should conserve. Okay, now the third point is minimize the environment damage. This is our duty. Then I told you the sentences, the things are repeating here. I told you that this is our right that we can freely use natural resources. अभी आप बाहर जाके नीम के पेड़ से उसकी पत्तियां तोड़ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो रिन्यू हो जाएगी. अगर आप पेड़ की स्टेम काट देंगे तो वो भी कुछ टाइम बाद रिन्यूड है, लेकिन उसको टाइम लगेगा. तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको उस पेड़ को काटने की जरूरत नहीं है लेकिन आपने उसको काटा, तो वही पेड़ अभी गर्मी में क्या देता? शेल्टर देता, है ना, ठंडी हवा देता, तो आने जाने वाले ट्रैवलर्स को सुविधा देता, लेकिन आपने उसको काट दिया.
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने अगर उसकी ब्रांचेस यूज करी तो नो प्रॉब्लम इज देयर, बिकॉज ओनली इन फ्यू डेज ये लीव्स आ जाती हैं। लेकिन आपने उस स्टेम को काटा तो उस पेड़ को बनने में कितना वापस टाइम लगेगा, आप समझ सकते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो मिनिमाइज द एनवायरमेंट डैमेज, हम रिसोर्सेज का यूज करें लेकिन उस डैमेज का कम से कम डैमेज हो, इस बात का ध्यान रखें। वाटर का यूज कर रहे हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेटली करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, वाटर स्कैर्सिटी आ जाएगी। अभी आप देख ही रहे हैं, और तेज गर्मी में तो हालत ये होती है कि कई जगह तो बिल्कुल पानी बंद हो जाता है, ऑफिस में वर्क बंद हो जाता है, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो जाता है। पिछली बार जो है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वहां वाले एरिया में ऐसा हुआ था कि वाटर की के लिए जो टैंकर थे ट्रेन के थ्रू वहां तक पहुंचाए थे। अब तो वो वाली भी कंडीशन नहीं है, कैसे करेंगे? इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, वंस अगेन द थिंग्स सेम, ह्यूमन लाइफ यानी हमारी जो लाइफ है उसको कैसे इम्प्रूव करना, हेल्दी रहना, एनवायरमेंट के नेचर के नजदीक रहना, और नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनको कंजर्व करके अपने अपने लिए भी यूजफुल होना और अपनी लाइफ को मेंटेन रखना, ताकि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, उनको कंजर्व कर सके और लॉन्ग टाइम के लिए फ्यूचर उसके लिए यूज कर सके। So today we discussed whole the chapter and thoroughly we discussed. If you have any query and question related to yesterday's topic and today's topic, you can ask. Please raise your hand. Any problem is there related to the points here, principles, duties, and definition of sustainable development? Any query, any question you can ask right now. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. मैम मुझे ड्यूटी समझ नहीं आई। ड्यूटीज का Today duties are, it's okay. Duties are same बेटा, जो हमने sustainable development के principles किए थे ना, duties are same. Okay, no problem. Minimize the environment damage. अभी मैंने एक बहुत अच्छा आपको एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि एनवायरमेंट का डैमेज कम से कम हो। मैंने कहा समझ लीजिए आपको क्या चाहिए, आपको नेचुरल वाटर चाहिए, या आपको कोई पेड़ की कुछ आपको यूं कहा जाए कि कुछ आपको वुड चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि पेड़ की स्टेम्स ना काट के उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, है ना, ये दिस इज कॉल्ड द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, वो आप उन ब्रांचेस को काट के यूज कर सकते हैं, वो आपकी वुड की तरह काम आएगी। ठीक है, और फिर विद द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम होगा ये ब्रांचेस वापस आ जाएंगे। लेकिन आप अगर आप उसकी जड़ से काट देंगे, उस स्टैम को काट देंगे, तो वो पेड़ खत्म हो जाएगा। तो ये बताओ एनवायरमेंट डैमेज हुआ कि नहीं हुआ? प्लस हमने ये कहा, और इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई यू कैन फ्रीली मूव इन द नेशन कंट्री, है ना, आप कर रहे हैं, तो आप जो है फ्रीली अपने सिटी के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन आपकी जो व्हीकल है उसमें से सबसे बहुत ज्यादा स्मोक निकल रहा है, तो वो एनवायरमेंट को पोल्यूट करेगा या नहीं करेगा, डैमेज करेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने व्हीकल को ठीक कराना चाहिए ताकि वो कम से कम स्मोक दे, तो जिससे क्या होगा, एनवायरमेंट को बचा जा सकता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम प्रैक्टिकली यूज करके अपनी ड्यूटीज को फुलफिल कर सकते हैं टू कंजर्व द natural resources, to take care of these resources. Yes, any other question? Yes, Kanish, ask. गुड आफ्टरनून मैम। गुड Good मॉर्निंग मैम, सॉरी afternoon. It's okay. Good morning. मैम। जब Yes, आपने speaker. मैम मुझे है ना सर, मैम ये ड्यूटीज का सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया। No problem is there. The diversity conservation का मतलब बच्चों क्या होता है? देखो, डाइवर्स का मतलब होता है भिन्न भिन्न, तरह तरह की चीजें। तो डाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी इन टोपोग्राफी, लैंड को देख लो, चलो, है ना, हम कहते हैं नॉर्थ में हिमालयस है, वेस्ट में डेजर्ट है, ईस्ट में हिमालय रेंजेस हैं, प्लेटियो है, फिर आइलैंड है। ठीक है, टोपोग्राफी हमने डिवीजन देखा। अब इस डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना है। अब इसमें कौन सी डाइवर्सिटी है? राजस्थान के अंदर मैंने अभी बताया जो वेजिटेशन और जो एनिमल्स है वो नॉर्थ, देखो अगर राजस्थान में कैमल है, बीस्ट ऑफ बर्डन, तो जो नॉर्थ में है हिमालय रीजन में क्या है, याक है। समझ रहे बात? तो ये होगी पहले डाइवर्सिटी, समझ लो, ये हो गई डाइवर्सिटी।
अब इस डाइवर्सिटी को क्या करना है, हमें कंजर्व करना है। कंजर्व कैसे, आपने बीच बीच में सुना होगा कि गोडावन जो कि हमारा यहाँ का राजस्थान का स्टेट जो है बर्ड है, वो उसकी जो है नंबर कम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ हंटिंग और बिकॉज ऑफ अनदर रीजन। तो मुझे ये बताओ कंजर्वेशन कब होगा, जब पूरी तरह से हंटिंग बैन होगी, पोचिंग बैन होगी, एनिमल्स को मारा जा रहा है, ट्रेड के लिए मारा जा रहा है, वेजिटेशन खत्म हो रहे हैं। तो ये सारी चीजों पे बैन तो लीगल बैन तो लगाया हुआ ही है, लेकिन ये तब तक वर्क नहीं करेगा प्रॉपर जब तक पीपल अवेयर नहीं होंगे, पर्सन टू पर्सन अपनी ड्यूटीज को नहीं समझेंगे। दैट्स इन दिस वे इफ वी अंडरस्टैंड आवर ड्यूटी वी कैन कंजर्व आवर diversity of our natural vegetation and also animals. Yes, any other question? If you have any problem related to the topic, you can ask right now. Okay, tomorrow we will discuss a new topic in your political science book. We will start our very first chapter. So till then, have a nice day.